Dear students, Assalamu alaikum and welcome to your social science class. Hope you are doing well. Well, dear friends, our today's topic is why are forests necessary? So, let's begin. Dear friends, forests are very useful for us. They perform various functions. Plants release oxygen that we breathe and absorb carbon dioxide. The roots of plants bind the soil, thus they control soil erosion. Forests provide us with timber for furniture, fuel, wood, fodder, medicinal plants and herbs like honey, gum, etc. etc. So all these things come from forests. Dear friends, uh, a little girl Leela, whose parents planted a sapling of neem to celebrate her birthday. On each birthday, a different sapling was planted. It was watered regularly and protected from severe heat, cold, and animals. Children took care not to harm it. When Leela was 20, 21 beautiful trees stood in and around her house. Birds built their nests on them. Flowers bloomed, butterflies fluttered around them. Children enjoyed their fruits, swung on their branches, and played in their shade. So, this is how the trees are friendly to us, useful to us, and they make our world beautiful. प्यारे बच्चों, forests जो हैं, they are very useful to us. They perform various functions. बहुत मुख्तलिफ किस्म की functions जो हैं, ये trees जो हैं, ये perform करते हैं. Plants release oxygen that we breathe. जो हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन हम लेते हैं, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ब्रीदिंग के लिए, तो ये ऑक्सीजन हमें प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं. ये प्लांट्स जो हैं यही ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और हम ये ऑक्सीजन ब्रीथिंग के दौरान इसको एब्जॉर्ब करते हैं. और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं या एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको ये प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं. So plants release carbon dioxide, oxygen and absorb carbon dioxide. The roots of the plants bind the soil. ये दूसरा फ़ायदा है, बहुत बड़ा फ़ायदा, कि ये जो soil होती है, मिट्टी जो होती है, इसको ये bind करते हैं, इसको जोड़ के रखते हैं. इसकी जड़ें, जो पौधों की जड़ें होती हैं, roots जो होती हैं, तो roots इस मिट्टी को जोड़ के रखती हैं, bind करती हैं, ताकि ये सॉइल इरोजन जो है वो इससे कंट्रोल होता है. बारिशों की वजह से जो सॉइल इरोजन होता है वो कंट्रोल होता है प्लांटेशन से, क्योंकि प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को बाइंड करते हैं. thus they control soil erosion. Well, there is another benefit. Forests provide us with timber for furniture, fuel, wood, fodder, medicinal plants and herbs like honey, gum, etc. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम प्लांट से हासिल करते हैं, चाहे टिम्बर हो, फर्नीचर हो, फ्यूल हो, फ्यूल वुड जो होता है ना जलाने की लकड़ी, फॉडर हो जो हमारे इन जानवरों के लिए, या मेडिसिनल प्लांट्स बहुत से हैं जो हमारे लिए जो मेडिसिनल वैल्यू रखते हैं. ये हमें सब चीज़ें जो हैं ये फॉरेस्ट से मिलती हैं, प्लांट्स से मिलती हैं. और हर्ब्स बहुत सारी होती हैं, तो ये भी छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं. लैक एक चीज़ है तो वो भी प्लांट्स से मिलती है. या हनी, तो हनी जो हम खाते हैं तो ये भी प्लांट्स की वजह से. तो गम ये भी प्लांट्स से निकलता है, एटसेट्रा. और बहुत सारे फ़ायदे हैं जो प्लांट्स के हैं. न्यूमरस बेनिफिट्स.
Forests are the natural habitat of wildlife. Now, this is the another aspect of the forests. They are the natural habitat of the wildlife. जितने भी ये जंगली जानवर हैं और परिंदे हैं, इनका जो हैबिटेट है, इनका जो घर है, ये फॉरेस्ट्स हैं. फॉरेस्ट्स जो हैं, इन्हीं के अंदर ये सारे जो जंगली जानवर हैं ये और परिंदे ये इन फॉरेस्ट्स के अंदर रहते हैं. नेचुरल वेजिटेशन हैज़ बीन destroyed to a large extent because of the reckless cutting of trees. We should plant more trees and protect the existing ones and make people aware of the importance of trees. We can have special programs like One Mahotsav to involve more people in making our earth green. तो ये जो वाइल्ड लाइफ है, इसको बचाने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करनी चाहिए और जितने भी फॉरेस्ट एरियाज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए. वी शुड नॉट इंडल्ज इन रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज़. तो ये जो दरख्तों को बेतहाशा बड़े पैमाने पर काटा जाता है, तो इसकी वजह से बहुत सारे जो वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं. बहुत सारे जो परिंदे और बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, वो ख़त्म हो गए हैं. तो ये हमें इस पे कंट्रोल करना चाहिए, इस चीज़ को हमें चेक करना चाहिए, रोकना चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करनी चाहिए और जितने भी फॉरेस्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि हमारी जो वाइल्ड लाइफ है और जो ये परिंदे हैं, जितने भी जानवर हैं, ये प्रोटेक्ट हो सकें. और इस तरह से इनका जब हैबिटेट इनका प्रोटेक्ट होगा तभी ये प्रोटेक्ट होंगे, क्योंकि फॉरेस्ट्स जो हैं ये इनका नेचुरल हैबिटेट है, इनका घर है. जब इनका घर महफूज होगा तभी ये ज़िंदा रह सकते हैं. अगर इनका घर महफूज नहीं रहेगा तो ये ज़िंदा नहीं रह सकते. सो फॉर देयर प्रोटेक्शन वी हैव टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट्स. ओके, सो दिस इज़ the importance of forests. Dear students, wildlife, as you know, forests are home to a variety of wildlife. There are thousands of species of animals and a large variety of reptiles, amphibians, mammals, birds, insects and worms which dwell in the forest. ये बहुत सारी किस्में हैं इन लिविंग थिंग्स की और एनिमल्स की. बड़े बड़े जानवर जो होते हैं वो जंगल में, जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल्स, वो जंगलों में रहते हैं. इसके अलावा रेप्टाइल्स होते हैं जैसे सांप वगैरह, इनको रेप्टाइल्स कहते हैं. इसके अलावा एम्फीबियंस होते हैं. ठीक है, एम्फीबियंस वो होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और खुश्की पे भी रहते हैं, तो इनको एम्फीबियंस कहते हैं. ममल्स उन जानवरों को कहते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, दूध पिलाने वाले जानवर, तो ये भी जंगलों में रहते हैं. बर्ड्स, ये सैकड़ों किस्म के जो बर्ड्स हैं वो जंगलों में रहते हैं. इंसेक्ट्स, थाउजेंड्स स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स. अच्छा, ये वर्म्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, तो ये सब जो हैं ये जंगलों में रहते हैं. तो अब अगर हम इन जंगलों को प्रोटेक्ट करेंगे तो ये सब चीज़ें भी प्रोटेक्ट हो जाएंगी. यहाँ आप देख सकते हैं जंगलों से हमें, फॉरेस्ट से हमें क्या क्या हासिल हो सकता है. देखिए, मेडिसिन्स जो हैं ये हासिल होती हैं फॉरेस्ट से. शेल्टर हम बनाते हैं, शेल्टर, तो इसके लिए जो हमें टिम्बर मिलता है तो ये फॉरेस्ट से मिलता है. फॉडर जो हमारे चौपाइयों के लिए, तो ये फॉरेस्ट से मिलता है. फ्यूल के लिए जो लकड़ी वगैरह, तो ये भी फॉरेस्ट से मिलती है. हमारे सपोर्ट्स गुड्स होते हैं तो ये भी लकड़ी से बनाए जाते हैं जो फॉरेस्ट से मिलते हैं. हमारा फर्नीचर ये भी फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है. अच्छा, इसी तरह ऑक्सीजन, तो ये सबसे बड़ी ज़रूरत हमें जो है पौधों से, ये पौधे हमें प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन. हनी, तो ये भी जंगलों से मिलता है क्योंकि ये हनी बीज जो है जंगलों में होती हैं,
تو وہاں پہ یہ ہونی پروڈیوس کرتی ہیں. پلانٹیشن جب ہوگی اور پودے جب ہوں گے تبھی بیز جو ہیں وہ جیوت ہوں گے، جی سکیں گی اور ہنی پروڈیوس کر سکیں گی. اسی طرح بہت سارے فروٹس یہ بھی ٹریز سے ملتے ہیں، فارسٹ سے ملتے ہیں. گم اینڈ لیک یہ بھی فارسٹ سے ملتا ہے. اسی طرح یہ فارسٹ جو ہیں یہ نیچرل ہیبیٹیٹ فار وائلڈ اینیملز ہیں. اور ٹمبر جو ہے لکڑی یہ بھی فارسٹ سے ملتی ہے. ربر جو ہے یہ بھی فارسٹ سے ملتا ہے، ٹریز سے ملتا ہے. تو یہ بہت اتنی ساری چیزیں جو ہیں یہ فارسٹ سے ہمیں ملتی ہیں. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فارسٹس جو ہیں ہماری زندگی میں کتنے امپورٹنٹ ہیں، ان کی کتنی اہمیت ہے اور ہمیں ان کی کتنی حفاظت کرنی چاہیے اور ان کا کتنا خیال رکھنا چاہیے. تو پیارے بچوں، ان کے اور کتنے کیا کیا فائدے ہیں یہ ہم دوسری اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے. تو آج ہم یہاں ہی اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے.